नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज द क्वेश्चन विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेप्थ ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है, असेस द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री ऑन द डाउनफॉल ऑफ मौर्यास। तो यहाँ पे अगर नहीं पता होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर सिर्फ पॉइंट्स लिख के कुछ मार्क्स मिलेंगे नहीं। ओके, वो डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है हिस्टोरियोग्राफी। So if you see the introduction, the first pan-India empire Maurya, after flourishing successfully for 2 centuries, moved towards its downfall after demise of Ashoka. Scholars hold different opinions regarding the decline of Mauryan empire. So ठीक है, ठीक है. Second way would be, you can even mention that the Mauryan empire है ना reached its downfall by 187/184, because दोनों dates बार बार हर जगह लिखी होती हैं. And what was the eventual event which was responsible for the downfall of the Maurya dynasty? It was the killing of Bridrat by Pushyamitra Shunga and the setting up of the Shunga empire. That could also have been written in the introduction. So that would have been even more context based, because just the demise of Ashoka तो थोड़ा सा far fetched है. Ashoka is going to die by 232 BC और 50 साल का फिर भी बीच में गैप है. Okay, then if we see the various points, तो बहुत सारे points हैं, weak successors etc. ठीक है, तो ये तो चल जाएगा. Brahminical revolution. Now this point should have been the first one. Why? Because जो हम decline को mention कर रहे हैं, assassination of Bridrat by Pushyamitra Shunga, उसी से ही continue करने का है. तो ये आपका first point होना चाहिए, because probably उसी से ज़्यादा connected है. तो structure जो flow आपका answer का है, that get further improved when you write the more important points at the top and less important point at the bottom. Like weak successor, it should be a lesser important point. First point कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है, even if आपके handout में notes में हो तब भी. Then पुष्यमित्र शुंगा, तो इसलिए हरप्रसाद शास्त्री जो है उनको mention करना जरूरी है. What are the points put forward by him in with respect to that? Okay, and pacifist policy of Ashoka. So this is put forward by S.C. Ray Chaudhary. उनका व्यू पॉइंट एक थोड़ा सा अलग तरीके का है. Then economic crisis, D.N. Jha, Romila Thapar have different kinds of viewpoints on this topic. Then other opinions are also there, like it was a vast empire. All right. And as a result of this, keeping it under control for a very long time was always going to be a very difficult task. To sum it up, it can be said that downfall cannot be contributed to single, as it is an outcome of combination of factors. So naturally, there cannot be any one factor. Some factors may dominate, but it cannot be only one factor, because the rise and fall of empire cannot happen just because of one single factor. It requires many factors to come together and then create the effective energy which will be eventually responsible for its rise or decline. So ऐसे क्वेश्चंस में पूरा हिस्टोरियोग्राफी बस आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे इन स्टूडेंट को बहुत अच्छे से हिस्टोरियोग्राफी पता है. ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हिस्टोरियोग्राफी रिलेटिवली ईजी भी है ना, जो एक्सेसिबल भी है बुक्स के थ्रू. भूपिंदर सिंह ने बहुत अच्छे से इसको दिया भी हुआ है. तो प्लीज़ ऐसे टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है एंड एक बैलेंस्ड कंक्लूजन करना है. Hi, welcome to Prep Career IAS. Today I am here with a very important announcement. We are starting a brand new batch of History Optional Foundation. So if you are somebody who is looking for history as an optional, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री से फ़ायदा क्या होता है, कितने मार्क्स आते हैं, टॉपर्स कितने निकलते हैं. एंड देन इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, then you can join our institute. चलिए बात करते हैं. So the program will start from 23rd of July. If you see from last few years, okay, हर साल टॉपर्स के 300 या उसके आसपास मार्क्स रहे हैं. In 2018 I was able to get 324 marks, and with the period of time we have produced large number of toppers. अगर आप देखोगे 17 में 316, 18, 19, 20, 21 as well as 22. Every year people are getting around 300 or more than 300 marks. उसके आसपास आ ही जाता है. In fact, the topper of 2023, she also got more than 300 marks. So it's a specific optional where you get good marks. प्लस व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल. देखो आपके जीएस में बहुत हेल्प करता है. प्रीलिम्स में कभी 10 से 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 से लेकर 40 मार्क्स तक मैक्सिमम आपका यहाँ से हो सकता है डायरेक्टली. GS1 में 100 मार्क्स के आसपास, GS2 में 50 एंड GS3 में 25 मार्क. लैंड रिफॉर्म्स वगैरह वाले जितने भी टॉपिक्स हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के, वो सारे हिस्ट्री ऑप्शनल से ही डायरेक्टली लिंक्ड है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर ए स्ट्रेटेजिक ऑप्शनल जो थोड़ा सेफ भी रहे और जिसमें मार्क्स भी एक अच्छे लेवल तक आ जाए पढ़ाई करके, तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल. With respect to our classes, okay, if you see our methodology is a bit unique. What do we focus upon? First of all, we give some specific classes which are concept oriented, कि भाई आप बेसिक चीज़ें समझो. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जैसे मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था. सो यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग इन द बिगनिंग. तो वो हम सबसे स्टार्ट में आपको कुछ बेसिक NCERT क्लासेस देंगे.
Then we'll go towards the core classes. These core classes are going to focus specifically on the topics of the history optional, and जो जितने भी topics हैं सब के ऊपर आपको अच्छे notes मिलेंगे, and side by side our classes are going to incorporate all the PYQs. जितने भी PYQs हैं सबको incorporate कर लेंगे. आपका एक अच्छा डेडिकेटेड रिवीजन टाइम मिलेगा शेड्यूल के साथ में. कंटिन्यूस असेसमेंट भी की जाती है कि हर 14 दिन के अंदर आपको एक टेस्ट देना है. इफ़ यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द टेस्ट, इफ़ यू आर एबल टू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपका अच्छे मार्क्स यूपीएससी में भी आ जाएंगे. बट फॉर दैट यू हैव टू बी रेगुलर, एंड वो अच्छी हैबिट इनकलकेट करने के लिए हमने ये स्पेसिफिक प्रोसेस बनाया. एंड फाइनली होलिस्टिक मेंटरशिप, नॉट जस्ट फॉर ऑप्शनल, फॉर ऑल द पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज ऑल्सो. एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर, हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स, हाउ टू क्लियर मेन्स, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स in the interview, all those things we focus on at Prep Career IAS. So once you are becoming part of this foundation course, it's not just about optional, it's also about your overall rank in the specific civil services itself. तो सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं. देन अगर क्वांटिटेटिवली बात करोगे तो लगभग 150 प्लस सेशंस में आते हैं, 90 प्लस हमारी कोर कंसेप्ट क्लासेस रहती हैं, 40 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन में आते हैं क्लास के अंदर. एंड फाइनली जो आपको कुछ वैल्यू एडेड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं टू मेक यू एट ईज विद द हिस्ट्री ऑप्शनल. क्यों? बिकॉज देखो कभी क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन दे दिया आपको, ठीक है, साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट मैप की जो साइट्स वगैरह उनकी कंपाइलेशन दे. तो ऐसे करके जितना भी एनालिसिस चाहिए होता है इस ऑप्शनल के लिए, उन सबको हमने डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में ऑलरेडी बना के रखा हुआ है. सो दैट हुएवर जॉइन्स दिस, उनको हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपके पास शुरुआत से ही एज रहे, और एज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है. सो दिस इज़ अबाउट द क्वांटिटेटिव. देन टेस्ट मिल जाते हैं आपको, 14-15 टेस्ट मिल जाते हैं ओवरऑल मिला के. देन वेबिनार्स होंगे मेरे साथ में, क्रिस्प हैंडआउट है, एंड मेंटरशिप सेशन तो साथ में चलते ही रहेंगे. इन 22 वी वर एबल टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन हिस्ट्री ऑप्शनल, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस. एंड दिस लेगेसी गोज अ लॉन्ग बैक. 2022 में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 21 में इनफैक्ट द रैंक 1 शी वाज फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज. सो इफ़ वी स्टडी वेल, इफ़ वी डेडिकेट आवरसेल्फ टू दिस ऑप्शनल कैन गिव यू वेरी गुड रिवॉर्ड. एंड हमारे साथ प्रिपेयर करोगे तो किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आई माई सेल्फ बीन एन ऑफिसर, आई माई सेल्फ बीन एन एस्पिरेंट ऑफ स्टडिंग विद दिस ऑप्शनल. मैंने हर चीज़ देखी है, एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 12 years टेल्स मी ओनली वन थिंग, दैट इफ़ यू आर स्ट्रेटेजिक, इफ़ यू आर मेथडोलॉजिकल, एंड इफ़ यू फोकस ऑन द राइट एरियाज, you can get very quick result. But yes, you have to be dedicated from your side. So if you are somebody with energy, somebody with dedication, become a part of this. 23rd जुलाई से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आपको अच्छे तरीके से मेंटर करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी गुड सिनर्जी बिटवीन अस, एंड आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू दिस, मार्कशीट वगैरह भी अगर आप देखोगे तो यू कैन सी इवन माई मार्कशीट, यू कैन सी आई गॉट 324 मार्क्स हियर. You can call on these numbers. These are the numbers through which you can get connected to our counselors. और counselors के through जितने भी queries हैं with respect to this program, you can eventually solve them out. आप offline visit भी कर सकते हैं in ORN, उसका भी एड्रेस वगैरह आपको वो सेंड कर देंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट.